I derived all the expressions using differential equations. Students, d square x by dt square is equal to negative omega square x. Using that, I have derived the formula for velocity also in that case, and displacement also. Integration. Yes or no? See, this is what it is. From the differential equation, can you derive the mathematical relation? You just forgot or what exactly is this? Students, I gave you the formula for V is equal to plus or minus omega under root b square minus x square. ये कहाँ से आता है? ये दिया कि नहीं दिया तुम लोगों को स्टूडेंट्स? From where are we getting this? And from here, I could get x is equal to a sine omega t. I can consider with an initial phase. I can consider as phi. और ये कहाँ से मिलता है? By using d square x by dt square plus omega square x is equal to 0. Students, क्या ये किया है या नहीं किया? Can you tell me? Any of you all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. We have done. You don't have a mental block. चलो एक सेकंड में वापस हम करते हैं. D square x by dt square plus omega square x is equal to 0. Students, can I write d square x by dt square is equal to negative omega square x? क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. And ये acceleration है. Acceleration को can I write on dv by dt also? Agreed? हाँ या ना? Yes, sir. Into dx by dx. Yes. Means we are actually going for differentiating x and then differentiating it as we can consider multiply by dx divided by dx. So that will be equal to how much? It will be negative omega square into x. We consider. ये क्या है? What is dx into dt? V. So can I say v into dv is equal to what? Negative omega square x into dx. Students, अभी इसको इंटीग्रेशन करते हैं हम. तो ये नहीं आया था हमें. हाँ स्टूडेंट्स. v square by 2. फिर हम लोग ने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट किया था. पूरा करो वापस इसको स्टूडेंट्स. हाँ. Yes, sir. चलो v square by 2. चलो v square Yes, by sir. 2. Negative omega square x square by 2 plus since we consider is a constant of integration c. ये क्लियर हुआ सबको? इंटीग्रेशन. How could you forget this, my dear? I don't understand. कैसे तुम लोग भूल सकते हो? अगर मुझे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करना स्टूडेंट्स, तो मैंने क्या बोला था? फिर पार्टिकल को हम एक्सट्रीम पोजीशन पे लेते हैं. तो अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे लेते हैं तो व्हाट एग्जैक्टली वेलोसिटी दैट इंस्टेंट विल कंसीडर विल बी इक्वल टू 0. तो अगर ऑफ कोर्स एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होता है तो उस टाइम पर उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? फिर एम्पलीट्यूड होगी, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, व्हाटएवर इट इज, इट्स एम्पलीट्यूड. नेगेटिव है यहाँ पे. अगर मैंने x को -a तो a स्क्वायर आ जाएगा. ये क्या है? वेलोसिटी 0. तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2. स्टूडेंट्स, आई एम ट्राइंग टू इवैल्यूएट कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. और मैंने कैसे इवैल्यूएट किया? कंसीडरिंग द पार्टिकुलर एक्सट्रीम पोजीशन. अभी मैंने c की वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी. तो नाउ सी व्हाट्स माय फॉर्मूला? v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2. c की वैल्यू लिखी मैंने माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाय 2. कैंसिल हो गया. डिड आई गेट दिस आंसर? ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकालो. हाँ स्टूडेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Why do you all forget? I don't understand that. Om Shinde. Huh? Yes, Priyal, why do you forget? Adit, Dhruven, Chanvi, Suchal, Mistry, Dhruv. Harsh, Hitanshu, Nyanka, Om.
Rishi, Rupesh, Ved, Vedant. Why do you all forget these things? I don't understand that. So अगर ऐसा होगा तो it's of no use. You see one thing, a lecture is once in a week for 2 hours. Are you getting it? And then that 6 days is off. And that in that particular 6 days, if you don't just go through it, it's all lost. Students, it's completely lost. Under what banner do you study? Under whom do you study? The answer to the students, I'm speaking in English. Under what banner do you study? Under whom do you study? Makes a difference. Makes a difference, students. Only a student does his studies by himself, unless and until you do studies properly. तुम्हारे पे डिपेंड है. अरे भले इंसान को मैंने टॉप मोस्ट बेस्ट ऑफ द इंडियन फैकल्टी के अंदर तुमको रख दिया, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट यू थिंक, लेकिन तुम खुद नहीं पढ़ोगे तो होगा क्या? यू कैन फॉरगेट दीस थिंग्स. अभी इसको मुझे इसमें कन्वर्ट करना, तो मैंने क्या किया था? हाँ स्टूडेंट्स, क्या किया था मैंने? b को dx by dt लिया था, है ना? फिर dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यहाँ पे लिया था, इज इक्वल टू ओमेगा इनटू dt लिया था, फिर इंटीग्रेशन किया था. इसका फॉर्मूला क्या था? साइन इनवर्स ऑफ Sin inverse x by s. Yes, sir. This we did. This I remember. फाइंड इट. दिस इज आल्सो डन माय डियर. इसी से तो हम लोग, यहीं से तो हमें v मिलता है, v को मैंने यूज करके ये Yes, किया. sir. Sir, I It wasn't actually forgot that assuming the particle is at extreme, so I forgot that part. okay to evaluate constant of integration. Yeah, I forgot that part, sir. Otherwise, in the starting part also I remembered, but that one I forgot. Okay fine, doesn't matter, because अभी मैं ये यूज करूंगा प्रॉब्लम्स. स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स देने वाला हूं मैं अभी, और कुछ डेरिवेशन करेगा तो प्रॉब्लम्स देने वाला हूं फेस के रिलेटेड भी. So please don't have a mental block. चीजों को टफ मत बनाओ स्टूडेंट्स, by not revising it, by not going through it. Okay students, we got the relation for this. Then I told you about the phase and all. Now we move further, students. We speak about with respect to your so-called expression for displacement law and the graphical representation, students. Okay. सबसे पहले अगर सपोज ये जो मैंने डांस सुना स्टूडेंट्स, ये जो मैंने इक्वेशन मैंने डिराइव किया था ना, x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स a sin ओमेगा t प्लस 3, ये हम लोग ने कहां से डिराइव किया? तो तुम क्या बोलोगे सर? वी कैन यूज द इक्वेशन ऑफ प्लेस फंक्शन प्लस और माइनस ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यहां से हमें ये मिला था. Yes, एग्रीड? sir. नाउ Yes, फ्रॉम sir. योर लिसनिंग केयरफुली स्टूडेंट्स, अभी ध्यान से सुनना. We can derive this expression, students, by simply going for, dance is it's a new heading, projection of a particle performing UCM when raised along the diameter. Projection of a particle performing UCM when raised along the diameter performs simple harmonic motion. Yani a particle which is performing UCM, अगर उसको मैंने diameter पे raise कर दिया students, that performs SHM. So this is projection of a particle along the diameter, students. Is from here also, students, we can get this particular expression. Let us first understand this statement, students. Once again, I'm speaking the statement. Students, is the audio and video is fine with all of you all? Yes. Okay. Okay, listen carefully, students. मेरा क्या लिखा है हेडिंग? प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यानी जब भी तुम एक्सप्लेनेशन करो या तुम समझो तो तुम्हें क्या समझना है कि पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन.
particle is performing uniform circular motion. Okay, UCM perform कर रहा है. Let us say the particle is at any instantaneous position B and it's performing uniform circular motion. In what direction we can say? Anti-clockwise direction. Students, this is how the motion is. अगर इसी particle को if I'm raising it along the diameter, तो क्या परफॉर्म करेगा? SHM. यानी ये एक टाइप का assumption है कि अगर मैंने इसको assume किया कि उस particle को मैं raise करता हूं along the diameter, aggregate, then it performs what? SHM we consider. So how do you put forward that? And this is actually what exactly, ये क्या statement throw करता है? ध्यान से सुनना. Students, जब भी मैंने शुरू किया था oscillations तो उस time पे what did I tell you students? मैंने ये बोला था R oscillatory motion, periodic motion. Students, are periodic motions oscillatory? पहले ये बताओ. Yes, sir. Yes. Yes. Oscillatory. तो मुझे बताओ, are oscillatory motions periodic? Not always. Not necessarily. Yes, sir. इसका मतलब under condition, और ये जो under condition आ गया ना, ये वाला condition. अब देखो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा oscillating motions are periodic. Students, once again I'm asking you, क्या ये clear हो रहा है तुम लोग को? Are you able to get it? What am I putting on the board? Yes, sir. Once again, periodic motions are all oscillatory. Students, oscillatory motions not necessarily periodic, but can I consider under certain conditions? तो ये तुम्हारा condition हुआ. अभी हम ये condition को समझते हैं. और ये condition में है क्या? Condition में है क्या? तुम लोग सिर्फ particles perform uniform circular motion. यानी it takes for one complete cycle, it takes periodic time to consider. अभी हम क्या करते हैं स्टूडेंट? ध्यान से सुनना. टू गेट दिस कंसेप्ट हम क्या करते हैं? आई एम अज्यूमिंग स्टूडेंट्स कि और एक पार्टिकल है which is exactly at the center, and I assume that this particle is at the foot of the perpendicular of P. Listen carefully. The particle M is exactly at the foot of the perpendicular of P. Yani every time the position of the P changes, students, then the position of M will be always at the foot of perpendicular from P. अभी suppose मैंने P को suppose मैंने यहाँ पे बताया. ध्यान से सुनना. At a particular time instant T, तो इसी का मैं एक perpendicular ड्रॉप कर दूंगा. अगर मैंने पार्टिकल का पोजीशन P1 दिया तो उसका पोजीशन M1 यहाँ पे आएगा. ये देखो, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो गया. अगर सपोज मैंने ये पार्टिकल, ध्यान से सुना, ये यूसीएम कर रहा है. व्हाट अबाउट दिस पार्टिकल? यहाँ पे आया. अगर ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचता है P2, तो उसी टाइम पे M2 भी उधर ही पहुंचेगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. तो यही होगा ना. सपोज इफ आई से इफ अ पार्टिकल आई एम टेकिंग इट एट P3, ये पूरा पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है और वो यहाँ पे पहुंचता है स्टूडेंट्स, तो उसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहाँ पे होगा? सर ड्रॉप ऑफ परपेंडिकुलर, तो वो होगा M4. If the particle reaches over here, and let us say this is P4, तो उसी का drop of perpendicular, that will be M4. If a particle reaches over here, P5, drop of perpendicular, so can I say that becomes M5. वापस coming back over here, drop of perpendicular. क्या ये mechanism clear हुआ students? Yes, sir. Mechanism clear. That means उसका मतलब क्या? ध्यान से सुनना. जब भी ये पार्टिकल P एक पूरा साइकिल कंप्लीट करता है स्टूडेंट्स, when this particle P completes one full oscillation, if this particle P completes one full oscillation, students, उसी इंस्टेंट पे, उसी टाइम में, यानी if P completes one revolution in time capital T, one revolution
in time capital T, it's performing UCM. What about particle M, which is at the foot of the perpendicular, students? Sir, it completes one oscillation. Yes, your M will complete one full linear SHM. Linear SHM. Can I say इसके लिए भी टाइम क्या होगा? इसके लिए भी टाइम क्या होगा? Same only. Periodic होगा. क्या ये क्लियर हुआ? तो कहने से अंडर कंडीशंस आ गया. मींस ये क्लियर हुआ भी सबको? Yes, sir. माया नाम पर आगे बढ़ो. Now अभी ध्यान से सुनना. Now we trying to get the relation. ये वाला relation हम derive करते हैं. ध्यान से सुनना students. What I'll do, you know students, अगर सपोज मैंने पार्टिकल को पहले से ही इसकी पोजीशन से मैंने डिस्प्लेस कर दिया. I have displaced a particle initially. ध्यान से सुनना. Initially मैंने पार्टिकल को डिस्प्लेस कर ही दिया है ऑलरेडी. इसका पोजीशन यहाँ पे है. तो कैन आई कंसिडर दिस एज माय फेज इज फी phi. तो ये जो फी है वो क्या होगा? सर ये होगा इनिशियल फेज और फेज कांस्टेंट. और कैन यू गिव मी वन मोर नेम? इनिशियल फेज, एपोक. और थ्रू आउट द जर्नी, स्टूडेंट्स, थ्रू आउट द जर्नी ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा. क्या ये समझ में आया? नहीं, मैंने क्लियरली बोला था स्टूडेंट्स, अगर तुम्हें मैंने बॉब दे दिया है, सस्पेंड किया है, तो किसी ने उसको पहले यहाँ से रिलीज किया और फिर मैं और थोड़ा सा पीछे लेके फिर भी रिलीज कर सकता हूँ. वही मैकेनिज्म मैंने ये लिया है स्टूडेंट्स. पार्टिकल ऑलरेडी इनिशियल फेज पे यहाँ से है, फिर मैंने यहाँ से उसको पुश किया. तो व्हाट हैपेंस? लेट अस से नाउ द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड in time t. Students, let us say the particle has displaced in time t at point t1. Students, what exactly is this we consider? So let us have a phase b theta. That means particle in time small t has additional phase of theta in time t. Therefore, can I say what is the total phase? What exactly the total phase? Phase total क्या बन जाएगा? So phase total, if I happen to go for then what exactly I'll consider will be? So this is theta plus t. यानी can I say omega t plus t. क्या ये clear हुआ? Yes, sir. Is this clear, students, all of you all? Welcome, Kunj, very early. Welcome, Rukhsar, very early. Thanks for entering into the lectures. Students, those who are present, क्या ये clear हुआ? Anything which you need to ask onto this? वापस बोला स्टूडेंट, पहले पार्टिकल वॉज हो गया तो ये इनिशियल फेज है, इसको एपोक बोलेंगे. लेकिन मैंने क्या किया, अभी मेरा मोशन शुरू हो गया पी से, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे t1 पे भी पोजीशन p1 है, पार्टिकल का पोजीशन p1 आया, तो ये एक एंगल ऐड हो गया इसके साथ में इन टाइम t. तभी जाके मैंने थीटा को लिखा है व्हिच इज एडेड टू माय इनिशियल फेज इन टाइम t. और थीटा को मैंने क्या किया? ओमेगा t दिया. व्हाई ओमेगा t? व्हाई ओमेगा t? बिकॉज़ वी नो दैट ओमेगा is equal to theta by t. So theta is equal to what? Omega into t. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Agreed? Yes, sir. Now the answer is Yes. now suppose if you look at the right angle triangle, students, if you look at the right angle triangle, ये तुम्हारा P1 है, पोजीशन P1. ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अगर जब भी पार्टिकल P to P1 आ रहा है, उसी टाइम पे पार्टिकल अपना जो एसएचएम कर रहा था वो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहां पे पहुंचा है? वो M1 पे पहुंचा है ना स्टूडेंट? देखो ना, P1 आया तो ये M1 आया. ये क्या हुआ सर? ये पार्टिकल, ध्यान से सुनना, ये जो डिस्टेंस है वो M1 का लीनियर मोशन है अलोंग द डायमीटर. प्लीज, ये जो पोजीशन M1 दिखा रहा है, दैट्स अ लीनियर मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द डायमीटर. What about OP1? Sir, OP1 is actually the radius of the circular path.
ये देखो ये रेडियस हुआ। और ना सपोज अगर यही पार्टिकल को, ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, अगर यही पार्टिकल को मैं यहाँ पे भेजता हूँ एट द डायमेट्रिक पॉइंट स्टूडेंट्स, यहाँ पे एट पॉइंट P2, so at that same instant M1 will reach at M2. Students, M1 will reach at M2. Now can you tell me what exactly your radius at this instant I can consider to be? So my radius will be now called as amplitude of the particle performing linear SHM. यानी P2 के लिए रेडियस है, ध्यान से सुनना, लेकिन M2 के लिए क्या हो जाएगा, वो ही एम्पलीट्यूड होगा। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? लीनियर SHM, mean position, free initial phase, additional phase, omega t is added to it. When the particle reaches over here, M1 reaches over here, at that same instant we consider. So for P, this distance I'll consider will be radius, and for M2 it becomes the amplitude. So can I call radius as equal to amplitude only? क्या ये क्लियर हुआ? Students, is it clear? Yes, sir. Now if I happen to go for the angle, students, ये देखो ये एंगल क्या होगा? What is this angle? सर ये दोनों एंगल मिला के यहाँ का एंगल इफ आई कंसीडर सर दिस बिकम्स थीटा प्लस पी, है ना, ये दोनों एडिशनल एंगल को मैंने ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, थीटा प्लस पी। कैन आई यूज साइन ऑफ थीटा प्लस पी will be equal to what? Opposite side, that is x, upon hypotenuse, radius, that is a. Therefore can I say x is equal to a sine theta plus p. Therefore x is equal to a sine omega t plus p. Therefore what exactly x is equal to a sine 2 pi small t upon capital T plus 2 pi delta x by lambda, because this is actually your phase difference I'll consider, which is x is equal to a sine, can I remove 2 pi outside, small t upon capital T plus x by lambda. Can I take x is equal to a sine 2 pi, so 1 by t is frequency into time plus x by lambda. Can I write down 2 pi by lambda? 2 pi by lambda as propagation constant. See, in different ways you can write in this expression. X is equal to a sine theta plus delta phi. X is equal to a sine theta ko I'm writing in terms of what? Omega t. That's the next one. Omega can be written in terms of 2 pi by t. What exactly delta phi is? 2 pi delta x by lambda. 2 pi को मैंने बाहर निकाल दिया students. So upon capital T, reciprocal of time is frequency plus x by lambda. Is this clear? What exactly this all expressions are? This is the expression for displacement of a particle performing linear SHM. And students, displacement of particle performing linear SHM, students, is always measured. It's always measured from mean position. ये ध्यान में रखना. Now, when you look at the expression, students, what exactly x stands for? Displacement. What does a stands for? Amplitude. What does small f stands for? Frequency. What does capital T stands for? Time period. What does small t stands for? Time instant. Instantaneous displacement here. Plus, what does x stands for? Propagation of the wave along x-axis. Particle is, yeah, actually speaking, particle I can come because यहाँ पे particle तुम्हारा x-axis पे. Wave is also propagating in that same direction. We consider. Lambda we consider is wavelength. 2 pi by lambda is called propagation constant. Delta p is called as phase difference or the epoch, which remains constant. Omega stands for angular frequency radians per second. It's not angular velocity. This is angular frequency. Omega is called angular velocity in circular motion and rotational motion. Students, वहां पे तुम उसको angular velocity बोल सकते हो. यहाँ पे तुम्हारा omega बन जाएगा angular frequency 2 pi upon capital T or 2 pi f radian second inverse.
Is this clear with all of you? Yes, sir. Can I erase this now? No, sir. No, One sir. minute. प्लीज ये सारे अलग अलग फॉर्म्स में लिख के रखना. अभी तुम्हारे जो एमसीक्यूज होंगे ना, वो सारे अलग अलग फॉर्म में आ सकते हैं. तुम्हें सिर्फ ये एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, तुम अलग फॉर्म में लिख सकते हो स्टूडेंट्स कंपैरिजन करने के लिए, so that you can get the answer accordingly. Students, can I erase that? No, sir. 1 minute, sir. Can I erase, students?
Hello, are you there? I'm over here only. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Finish writing. Yes. Yes. Okay. Okay, students. Now, students, if you recollect, I had told you earlier, students, that when you're speaking about the concept related to your restoring force, students, listen carefully. Just a short concept. We are going to go back, students. When I started off with respect to your SHM, students, the definition of SHM kya hai? Then your answer will be, is that linear oscillatory motion about its mean position such that the restoring force is directly proportional to displacement and it's directed towards the mean position. I repeat, linear simple harmonic motion is that periodic oscillatory motion of a particle about its mean position such that the restoring force is directly proportional to its displacement and always directed towards its mean position. Ye tumhara definition hai. Instead of that, can I say restoring acceleration? Why not? Restoring force, I can write down in terms of negative k into x. Restoring force is mass into acceleration restoring, which is equal to negative k into x. Your restoring acceleration also can be written as negative k by m into x. This negative k by m restoring acceleration is written in terms of omega square. And when I told you for the time, we just take it in this case as blindly. यानी k by m को हम omega square लेते हैं, तभी जाके students हमारा जो relation आ रहा था omega square is equal to k by m. So omega क्या है? Under root k by m. Omega क्या होगा? 2 pi by t under root k by m. T क्या होगा? 2 pi under root m by k. इसी relation को लेते हुए we find out time period of oscillation of a simple pendulum and a compass needle. T is equal to 2 pi under root I upon n b we consider. The general formula of time period we consider can be written in this way also. Students, देखो यहाँ पे T is equal to 2 pi under root m upon k की जगह पे what am I going to write down, students? K is equal to fx. The answer is सुना students. K की जगह पे what exactly? F by x. F is what? F is what? Mass into acceleration. M gets cancelled. यानी students एक standard formula time period का क्या मन में T is equal to 2 pi under root x by a. Linear acceleration, sorry, linear displacement upon linear acceleration. Students, ये ध्यान में रखना. यही चीज अगर मैंने फॉर एंगुलर के लिए पूछ लिया तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए जगह पे क्या होगा? P is equal to 2 Theta by alpha. थीटा बाय अल्फा. यही चीज अगर सपोज मैंने ये भी बताया था, सपोज इफ आई कंस्ट्रक्ट एन अर्थ और अर्थ के अंदर मैंने एक टनल बता दिया एंड इफ आई मेक अ बॉडी टू सस्पेंड इनसाइड, इट्स गोइंग टू परफॉर्म SHM. What's the time period of oscillation for such a particle within the Earth's core we consider? T is equal to 2 pi. X Root की जगह क्या R होगा? by G. वेरी गुड, R by G. ये सब ध्यान रखने, इसी के रिलेटेड होगा. लाइकवाइज अगर सपोज मैंने एक ट्यूब दिया है और उसके अंदर मैंने कुछ स्टील बॉल्स डाला है और उस ट्यूब को मैंने फ्लोट कराया इन वाटर, इट्स फ्लोटिंग इन वाटर, इट हैज फ्लोटेशन.
but with my finger I move it down and the displacement is x. Yeah, h. ध्यान से सुना, I'm displacing it h downwards and then releasing it. It's going to perform SHM. तो ये x की जगह पे क्या होगा? h. Friends, x की जगह पे क्या हो जाएगा? h. a की जगह पे g आ जाएगा. So students, ये जो है ये standard relation which a student should keep in mind. Now the only question was that was during that time also you all went asking कि sir ये कैसे equate करते हैं? तो ये जो equating part आता है यहाँ पे, और शायद मैंने लगता है मैंने ये बता दिया था तुम्हें पहले. स्टूडेंट्स ये बता दिया ना मैंने, how to get it? What exactly I told you students? ध्यान से सुनना. If I'm not right now, please pay attention for this. What makes me to equate this? Students ये वाला हम लोग ने अभी जो पढ़ा वो क्या था? तो तुम बोलोगे सर अभी आपने जो बताया था वो बताया था कि पार्टिकल पी परफॉर्म करता है यूसीएम, है ना? उसी इंस्टेंट पे यहाँ पे जो पार्टिकल का था वो क्या परफॉर्म कर रहा है? लीनियर एसएचएम. अगर सपोज ये पार्टिकल पी यहाँ पे आता है तो उसी टाइम पे पार्टिकल एम भी वहां पे आता है. तो पार्टिकल पी को मैं रेड में लिखता हूँ. ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, पार्टिकल एन को मैं लिखता हूँ ब्लू इंक में. स्टूडेंट्स जब पार्टिकल पी एक्सट्रीम पे आता है स्टूडेंट्स, एट दैट टाइम व्हिच फोर्सेस डायरेक्टेड फ्रॉम द पार्टिकल टुवर्ड्स द सेंटर, फ्रॉम द पार्टिकल टुवर्ड्स द सेंटर. तो तुम देखोगे सर पार्टिकल पी इज परफॉर्मिंग यूसीएम. तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए फॉर पार्टिकल पी we have force centripetal, which is a radially inward force. So negative we consider, or I can put only force centripetal. Force centripetal. Negative sign will be directed inwards we consider. M के लिए क्या होगा उसी इंस्टेंट पे? स्टूडेंट्स फॉर M what exactly write down? सर M परफॉर्म कर रहा है लीनियर एसएचएम. तो M के लिए क्या होगा सर? फॉर पार्टिकल M, फॉर पार्टिकल M उसी इंस्टेंट पे होगा रिस्टोरिंग फोर्स. यानी इसके लिए होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, पी के लिए एन के लिए होगा रिस्टोरिंग फोर्स. दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, तभी जाके टाइम इंटरवल कांस्टेंट हो रहा है ना. क्या ये पार्ट क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. नाउ इक्वेटिंग द टू, व्हाट एग्जैक्टली अ फोर्स सेंट्रीपिटल? सो फोर्स सेंट्रीपिटल को हमें पता है नेगेटिव एम आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट इज रिस्टोरिंग फोर्स? नेगेटिव के इनटू आर. देखो ना तुम्हारा x क्या बन जाएगा सर? x इज इक्वल टू आर की पोजीशन यहाँ पे. दोनों को p और n एक्सट्रीम पे आ गए. कैन आई कैंसिल r and r? yes. negative sign also? yes. what is m into omega square? k. therefore can you say omega square is equal to what? k by m. therefore exactly omega is equal to under root k by m. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Is this clear students? Students क्या ये क्लियर हुआ? हाँ या ना? अरे रिप्लाई करो. Omega is equal to under root k by m. Yes, sir. The centripetal force and the restoring force, both of them are directed from the particle along the radius towards the center we consider. Circular motion के लिए towards the center, SHM के लिए towards its mean position. दोनों को equate कर दिया तो omega is equal to under root k by m. K का मतलब क्या हुआ सर? K is a spring constant, force constant, elastic constant. वही मैंने डिराइव भी कर दिया था. दो स्प्रिंग्स अगर सीरीज में है इफेक्टिव रेसिप्रोकल, दो पैरेलल में इफेक्टिव एडिशन. और प्रूव भी किया था कहाँ पे k1 plus k2 आता है, कहाँ पे k1 k2 अपन k1 plus k2 आता है, वो भी मैंने बताया था. प्लीज तो ये सब चीजें ध्यान में रखना. डोंट फॉरगेट दीज थिंग्स. नाउ कैन आई इरेज ओनली दिस स्टूडेंट्स? No, sir, one minute. Maths was the toughest. I had gigs in the newspaper also. Maths was the toughest for advance. The genius is that maths was toughest.
overall second set was very tough. Second paper. Yesterday I was at the Power Center in Nantes and I was so happy to see the students coming out. Students, you won't believe that the students were coming out from the second paper after 2.5 years of this online studies. The way you all are going through a lot of pains. Oh my God! So many parents were there outside. They were literally crying. They were clapping for the kids who were coming out, and the roar was going on in the entire campus. It was like it was a beautiful scene. Something different. The way you all are taking so much of pains, your studies is complete. Your entire 11th is gone in online. The 12th is also going in online, and this pandemic to get marks, it's not a joke. Results are on 15th. Advance. कुंज कहाँ हो? कुंज हो कि नहीं हो कि चले गए हो? कुंज कुंज रिप्लाई करो. कुंज रिप्लाई नहीं कर रहा है. He's texting it. कुंज समझ में आ रहा है? कुंज लेट क्यों आए? लेट क्यों आए कुंज? Okay, I joined before but got disconnected. Okay, switch. क्या मैं इसको erase करूँ अभी? Yes, sir. आया ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, switch. Now suppose if I happen to consider the equation I've got at x is equal to a sine omega t plus phi we consider students. Okay, and please each and every variable का मतलब है students. विधान से सुनना. वापस मैं लास्ट टाइम ये दिखा रहा स्टूडेंट्स वेरिएबल का मतलब. विधान से सुनना. अगर कोई पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, वेव आगे की तरफ जाना. ध्यान से सुनना. वेव आगे की तरफ जाना उसका मतलब एनर्जी प्रोपोगेट करना. एनर्जी आगे प्रोपोगेट कर सकती है. अगर मैंने एनर्जी और वेव को एक्स एक्सिस पे लिया है तो मेरा पार्टिकल वाई एक्सिस पे होगा, ऑसिलेटिंग अलोंग वाई एक्सिस. उसके लिए मीन पोजीशन होगा, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम हो जाएगा, ये नेगेटिव एक्सट्रीम हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए. ये हो जाएगा पाथ लेंथ. ये ट्रांसवर्स वेव का होगा. अगर सपोज मैंने पार्टिकल को ऐसे ऑसिलेट करा दिया तो कोई टेंशन नहीं है स्टूडेंट्स. यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो तुम्हारा है, ये जो तुम्हारा मीन पोजीशन होगा, ये प्लस ए होगा, ये माइनस होगा. लेकिन ये क्या है, पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस. इवन स्टूडेंट्स वेव उसी डायरेक्शन में जाएगा क्योंकि पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. दे ट्रांसफर द एनर्जी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो यहाँ पे पार्टिकल डिस्प्लेस करता है एक्स एक्सिस पे, वेव या एनर्जी वो भी एक्स एक्सिस पे जा रही है स्टूडेंट्स. तो ये कौन से वेव फॉर्म है, ये है लॉन्जिट्यूडनल. स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना. अगर सपोज मैंने एक्सप्रेशन दिया y is equal to plus or minus a sin omega t plus or minus phi,
और फिर मैंने दिया x इज इक्वल टू प्लस और माइनस a sin ओमेगा t प्लस और माइनस v। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, किसी को भी किसी हाल में कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। ये एक्सप्रेशंस में तुरंत तुम्हें बोलना चाहिए सर y बताता है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, a बताता है प्लस ए माइनस ए एम्पलीट्यूड के बारे में, साइन का मतलब ये है यू ऑल हैव डन ग्राफ्स अर्लियर, बेसिक मैथ्स किया हुआ है, शायद फिर वो भी हुआ होगा। तो अगर मैं साइन वेव फॉर्म लेता हूँ स्टूडेंट्स तो हमेशा वो एक्स एक्सिस से शुरू होगा, ध्यान से सुनना। और ऊपर से अगर Sir, सपोज we मैंने can't hear you, sir. पार्डन, यस व्हाट हैपेंड? Hello, sir. या Okay, so now I can hear you, sir. For like 30 seconds, I couldn't hear you. why like that? Students, you all are able to hear me? Is the audio video fine? Students, is the audio video fine with all of you all? So now it's fine. Yes, sir. Yes. ओके अभी सपोज मैंने पूछा स्टूडेंट, अगर मैंने बोला साइन वेव फॉर्म है और प्लस है तो उसका मतलब ये एक्स एक्सिस से शुरू है प्लस से जा रहा है। अगर वही मैंने माइनस से लिया है तो इस तरफ जाएगा। यू ऑल नो दिस पार्ट वेरी क्लियरली। अगर मेरा वेव फॉर्म कोसाइन वेव होगा तो ऊपर से जाएगा, प्लस से होगा, नीचे होगा तो माइनस ए से होगा। Agreed? So that's how we consider. That is the particle is and the wave is moving along x-axis. We consider sine wave क्या दिखाता है starting from x-axis. Cosine होगा तो it will be along y-axis we can consider. तो ये तुम्हारा wave का propagation है। ओमेगा क्या है? Angular frequency. दोनों केस में ओमेगा को 2 पाई बाय ओमेगा को 2 पाई बाय स्मॉल टी लिख सकते हो या 2 सॉरी स्मॉल कैपिटल टी या 2 पाई एफ लिख सकते हो। टी क्या है? टाइम इंस्टेंट, ये भी ध्यान में रखना। नेगेटिव साइन दिखाता है स्टूडेंट्स, नेगेटिव साइन दिखाता है कि एनर्जी जा रही है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये ध्यान में रखना। ये जो नेगेटिव साइन है इट स्पीक्स अबाउट द वेव इज प्रोपगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी नेगेटिव साइन क्या दिखाता है? वेव और एनर्जी प्रोपगेटिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये ध्यान में रखना। पॉजिटिव साइन शोज दैट इट्स प्रोपगेटिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये जो फी है वो एक्चुअली डेल्टा फी है, चेंज इन फेज व्हिच रिमेंस कांस्टेंट वी कंसीडर। उसका क्या है? डेल्टा की फॉर्म का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई डेल्टा x बाय लैम्डा। कैन आई राइट ऑन दिस इन टर्म्स ऑफ टाइम इंटरवल? यस सर। ये पूरा तुम्हारा एंटायर कंसेप्ट है, यानी हर एक वेरिएबल को समझना जरूरी है बिफोर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। इज दिस क्लियर? So can you explain the significance of negative sign? My dear, when I speak about omega t plus or minus kx, I can write this in terms of kx also, where k stands for propagation constant. Students, negative sign speaks about that the wave propagating along positive x-axis, and positive sign speaks about wave or energy propagating along negative x-axis. Listen carefully. Everybody listen carefully. Suppose ये medium है, ध्यान से सुनो students. Let us go for this medium part of it. अगर मैंने यहाँ पे इस medium, सोचो कि ये पानी है, still है. Everybody please consider ये still है. और मैंने यहाँ पे pebble throw किया है, एक stone throw किया, तो क्या होगा? मुझे ripples मिलेगा. I can have ripples over here also, ripples over here. Source of energy यहाँ पे है. अभी मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, जैसे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है स्टूडेंट्स, अगर मैं ये पार्टिकल पकड़ू P1 और ये नेक्स्ट इंस्टेंट में पकड़ू P2, तो कैन आई से एवरी पार्टिकल, ध्यान से सुनना, every particle, see my wordings, every particle lags behind the preceding particle. ध्यान से सुना, every particle is actually lagging behind the preceding particle by a certain constant phase of 2 pi of 2 pi. क्या ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ सबको? पार्टिकल P1 lags behind the particle P2
by a certain constant phase of how much 2 pi. अगर किसी ने पूछा क्या constant phase है 2 pi है ना, क्यों नहीं है स्टूडेंट्स, क्यों नहीं है? देखो ना, ये 1 pi by 2, ये 2 pi by 2, sorry ये 1 pi by 2, ये 2 pi by 2, ये 3 pi by 2, ये 4 pi by 2 भी consider. That means what exactly consider will be, and this is 5 pi by 2. देखो ना, 5 pi by 2 minus 5 by 2 कितना होगा? 4 pi by 2. Am I getting 2 pi? क्या ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, Yes, sir. now since I said that the wave is going along positive x-axis but every particle lags behind, तो ये जो है ना स्टूडेंट्स, ये जो नेगेटिव साइन बताता है lag in phase. Every particle, ध्यान से सुनना, lags by a constant phase, a constant phase of 2 pi, a constant phase of 2 pi we consider, and that is why we consider with negative sign. The wave is moving along which axis? Positive x-axis. लेकिन वही जब मैं लेफ्ट हैंड साइड पे जाता हूँ स्टूडेंट्स, वही मैं देख सकता हूँ, तुम बोल सकते हो सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तो सर ये पार्टिकल भी तो लैग कर रहा है ना as compared to this particle. Yes, लेकिन is it along positive x-axis or negative x-axis? Negative. So minus we consider in terms of what we consider. The minus into minus, what exactly consider in this case? If I'm going to consider minus into minus, we consider will be what? Along with the negative sign we consider. It's on the left hand side. And in negative sign says the wave is propagating along what? Positive we consider. And the positive sign speaks about the wave is moving along what? Negative we consider. क्या ये clear हुआ? That lagging in phase we consider. तो ये जो तुम्हारा है पार्टिकल का लैग इन फेज होता है, and that lag in phase is always given by 2 pi by delta t by t and 2 pi delta x by delta. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Particle lags behind the preceding particle by a constant phase difference. So students, for your time being, डांसर्स है ना, ये वापस तुम वेव मोशन पे भी करोगे, साउंड वेव्स में करोगे, लेकिन नाउ टू क्रैक क्वेश्चन स्टूडेंट्स, तुम्हें ये इक्वेशन आना जरूरी है. जब भी तुम ऐसे इक्वेशन को देखोगे तो प्लीज डोंट टेक टेंशन कि हमेशा तो हम एक्स में पढ़ते हैं, अभी वाई क्यों दे दिया उन्होंने. अगर ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे वाई हुआ, यहाँ पे वाई हुआ और यहाँ पे एक्स आया स्टूडेंट्स, 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, उसका मतलब ये ट्रांसवर्स वेव के बारे में बता रहा है. तुरंत तुम्हें कनेक्ट करना होगा क्योंकि ये वेव का प्रोपोगेशन हुआ और ये पार्टिकल का हुआ. लेकिन जब भी तुम यहाँ पे देखोगे स्टूडेंट्स, ये देखो ये पार्टिकल एक्स है, फी कैसा है 2 पाई डेल्टा एक्स बाय लैम्डा, यानी ये पार्टिकल है, ये वेव का है. तो ये क्या हुआ सर, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, उसका मतलब ये लॉन्जिट्यूडनल वेव प्रोपगेशन है और ये ट्रांसवर्स वेव प्रोपगेशन है. एसएचएम हो सकता है ना, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है स्टूडेंट्स, वर्टिकल भी हो सकता है. अगर सपोज मैंने स्प्रिंग ऑसिलेटर लिया स्टूडेंट्स, क्या मैं स्प्रिंग ऑसिलेटर को वर्टिकल रख सकता हूँ और मैं इसको ऑसिलेट करा सकता हूँ? क्यों नहीं. वही स्प्रिंग ऑसिलेटर को मैं हॉरिजॉन्टल भी रख सकता हूँ ना, एक सरफेस के ऊपर रखो और फिर इसको मैं खींच के मींस आई विल पुल इट एंड देन आई कैन मेक इट टू ऑसिलेट अलोंग हॉरिजॉन्टल. तो SHM can be along x-axis, it can be along y-axis, and it's linear SHM, one dimension, either along x or along y. Is this clear to all of you all now? Om, is it clear? Yes, sir. Josh, what about you? Yes, sir, clear. What about Ruksar? Kunj? Ruksar, she's not there? Very good. Rishi, is it clear with you? Rishi, are you there? Rupesh, Sanika, Vibhavri? See, they are into the sessions, but no reply at all. Hitanshu, what about you? Deepak Lohar, what about you? Mistry Dhruv, what about you?
Can I erase this? No, sir, one minute. Vedant, are you there? वेदांत, जब भी इस पार्टिकल को एनर्जी मिलती है ना, ध्यान से सुनना वेदांत, जब भी इस पार्टिकल को एनर्जी मिलती है, गेटिंग इट, तो वो सबसे पहले ऑसिलेट करना शुरू करेगा, तब तक BCD रेस्ट पे होता है। तो अगर सपोज मैंने बोला कि पार्टिकल A चला जाता है, ध्यान से सुनना, अगर पार्टिकल A चला गया है पॉजिटिव एक्सट्रीम, तभी व्हाट एग्जैक्टली पार्टिकल B इज स्टिल एट मीन पोजीशन। तो इसका फेस कितना होगा? तो बोले सर इसका फेस π/2 होगा। इसका फेस क्या है? 0 है। ये है A और B का। क्या इतना क्लियर हुआ? हाँ वेदांत, क्या ये क्लियर हुआ? क्योंकि ये मीन पोजीशन पे है अभी भी। अरे वेदांत रिप्लाई तो कर। यानी अगर मैंने बी का फेस पूछा इन कंपैरिजन टू ए, तो क्या कर रहा है वो? लीड कर रहा है या लैग कर रहा है? वो पीछे है ना, क्योंकि उसको जो एनर्जी मिलेगी स्टूडेंट्स, इट्स आफ्टर अ सर्टेन टाइम, आफ्टर अ टाइम इंटरवल स्टूडेंट्स, आफ्टर अ टाइम इंटरवल ऑफ T/4 B is going to receive the energy। तो जब ये पार्टिकल ए स्टूडेंट्स, जब ये पार्टिकल ए वापस अपने मीन पोजीशन पे आएगा, उस टाइम पे ए विल गो एट इट्स पॉजिटिव एक्सट्रीम। सॉरी, ध्यान से सुनना, जब ये पार्टिकल ए अपने मीन पोजीशन पे आएगा, बी विल गो टू इट्स पॉजिटिव एक्सट्रीम। तो ए का फेस क्या बन जाएगा? पाई। ध्यान से सुनना, बी का क्या बन जाएगा? π/2। सी का भी क्या है? 0। डी का भी क्या है? 0। तो कहने से एवरी पार्टिकल लैग्स बिहाइंड, ये देखो, दिस इज लैगिंग बिहाइंड दिस, दिस इज लैगिंग बिहाइंड दिस बाय अ सर्टेन फेज स्टूडेंट्स, बाय अ सर्टेन फेज। लेकिन अगर मैंने पार्टिकल को इक्वी डिस्टेंस पे रखा, यानी अगर मैंने टाइम कांस्टेंट रखा, तो इनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस आएगा। वो क्या आएगा? 2 पर आएगा। क्या ये क्लियर हुआ? एवरी पार्टिकल लैग्स बिहाइंड द प्रीसीडिंग पार्टिकल बाय अ कांस्टेंट डिफरेंस इन फेज। ये जो लैग वर्ड होता है, उसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैंने नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया है और वेव किस तरफ में दिखा रहा हूं सर? वेव तो आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है। देखो ना, पार्टिकल को आपने ऑसिलेट किया है और ये पॉजिटिव एक्सिस पे ले रहे हो। तो जब ये पॉजिटिव एक्सिस है, तो ये नेगेटिव साइन क्या दिखाता है? लैगिंग फेज।
तो हम ये बताते हैं अगर माइनस फी आया उसका मतलब वेव पॉजिटिव एक्सिस पे जा रहा है, तो उसी का ही ऑपोजिट हम पकड़ते हैं। अगर मैंने प्लस फी बोला उसका मतलब द वेव इज गोइंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्या ये क्लियर हुआ अभी वेदांत? Friends, is it clear to all of you all? Every particle lags behind the preceding particle by a certain phase. अगर मैंने टाइम इंटरवल कांस्टेंट रखा, कैपिटल डी रखा, तो एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस 2 पाई होगा। और यहाँ पे जनरली हमारा वेव एक्स एक्सिस पे जा रहा है ना, तो लैगिंग फेज यानी ये नेगेटिव दिखा रहा है, यानी अगर तुम नेगेटिव को देखो तो उसका मतलब मोशन ऑफ द वेव इज अलोंग एक्स एक्सिस, एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस। वही अगर मैंने इसको पॉजिटिव में दिखा दिया तो मोशन ऑफ द वेव कैन बी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस आल्सो, सॉरी नेगेटिव एक्स एक्सिस आल्सो कैन टेक इट। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? हाँ या ना? Yes, sir. Now can I erase this? No, sir, just 1 second, I have to write it. Students, all the chapters पूरा फेस का ही है। फेस जिसको समझ में आया students will be able to crack MCQs. जिसको फेस समझ में नहीं आया that person will get stuck up. And all these are trigonometrical identities will come across. The functions will be sine of a plus or minus b, cos of a plus or minus b. The two formulas has to be strongly known to students. Then you should know sine of a plus sine of b, cos of a plus cos of b. So it's completed. Can I erase? Yes, sir. Okay, students. अब मुझे ये बताओ. Now let us go for simple differentiation, students. Please, and all of you are good in maths. Suppose students, मैंने equation दिया x is equal to a sin theta. My question is, students, differentiate this with respect to time. तो क्या करोगे? X is equal to a sin theta, students, differentiate with respect to time. तो क्या करोगे? dx by dt is equal to differentiating a sin theta by dt. dx by dt क्या हो जाएगा? v. Students, what is differentiating a sin theta? A is the amplitude which is constant. Students, what is differentiating sin theta? Cos theta. Into what differentiating theta होगा? d theta by dt. Agreed? Yes, sir. यानी it's actually chain rule in derivative dx by d theta into d theta by dt. Is that clear? First you are differentiating x with respect to theta and then you are differentiating theta with respect to t. ये है तुम्हारा chain rule in derivatives. तो हम लोग chain rule use करके तुम लेके आते हो, लेकिन मैंने अभी डायरेक्टली ले लिया। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? वेलोसिटी, इसी को अगर मैं एक्सेलरेशन में लिखूं तो एक्सेलरेशन क्या होगा? सर डिफरेंशिएटिंग वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये जो d theta by dt है, कैन आई रन दिस एज ओमेगा? व्हाई नॉट? Yes, तो sir. मेरा ओमेगा, ये ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। व्हाट इज डिफरेंशिएटिंग cos थीटा स्टूडेंट्स? Minus sin theta. तो माइनस sin थीटा आ जाएगा इनटू व्हाट? D theta by dt. और वो ओमेगा वापस आ जाएगा। क्या ये Yes, क्लियर sir. हुआ?
Yes, sir. ओके, डिफरेंशिएशन ध्यान में रखना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, सेम एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, यही एक्सप्रेशन, लेकिन मैंने क्या किया है, एक एडिशनल फेज एपोक को मैं ऐड कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स अभी मेरा इक्वेशन है x इज इक्वल टू स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस p। हाँ स्टूडेंट्स, अगर मैंने ये वाला इक्वेशन दिया तो नाउ कैन यू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स? v का फॉर्मूला क्या होगा? Sir, A omega cos omega t plus psi. ओके, cos ओमेगा t प्लस p होगा। Yes. यानी स्टूडेंट्स तुमने क्या किया, एक कांस्टेंट होगा डिफरेंशिएटिंग साइन, यानी पूरा एंगल तो cos में आ गया। फिर अगर तुम ये डिफरेंशिएट करते स्टूडेंट्स, ये तो कांस्टेंट है एपोक, कांस्टेंट टर्म्स कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड, उसका आंसर 0 होगा। तो डिफरेंशिएटिंग ये होगा तो ओमेगा वी कंसीडर इन दिस केस, आउटसाइड वी कंसीडर dt, dt विल गेट आंसर। तभी जाके हमारा a ओमेगा आ गया। ये है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना, ये जो x मैंने निकाला है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल व्हिच इज इन मीटर और मिलीमीटर। स्टूडेंट्स मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हिच कैन बी इन मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड या मिलीमीटर पर सेकंड। ये क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल व्हिच इज इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, मिलीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सारे पार्टिकल्स का है, यहाँ पे भी ये पार्टिकल का है। अगर किसी ने पूछा व्हाट इज वेव वेलोसिटी स्टूडेंट्स, वेव वेलोसिटी, तो ये वेव वेलोसिटी नहीं है, ये पार्टिकल वेलोसिटी। स्टूडेंट्स वेव वेलोसिटी तो v f लैम्बडा आएगा। velocity of the wave, velocity of the wave is the distance covered by the wave per unit time for a distance equal to lambda time is periodic, for a distance equal to lambda time is periodic, therefore f lambda। ये वेव वेलोसिटी के बारे में, ये सब हम पार्टिकल के बारे में कर रहे हैं। और यहाँ पे तुम्हारा इनिशियल फेज एपो कांस्टेंट आ रहा है थ्रू आउट। ना सपोज अगर मैंने पूछा डिफरेंशिएट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इट, तो क्या करोगे, एक्सेलरेशन मिलेगा। Minus Please. A omega square sin omega t plus psi. Yes, it's omega t plus p। ये हुआ तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। If the displacement is along x axis, velocity will be in the direction of x axis, acceleration is also in the same direction। Agree students? Now can I erase students? अब मैं पूरा erase कर दूं? So 1 second, so the top part.
Yes, students, can I erase now? Yes, sir. Excellent. So now continuation of the mathematical formula, students. If in case if you look over here, this was the waveform I had shown it. Consider that the particle यहाँ पे हम consider करते हैं as mean position x is equal to 0. This is positive extreme. X is equal to plus a. This I'll take it as negative extreme. X is equal to minus a. Okay. Now suppose if I say if a particle is starting from mean position, students, the initial phase यहाँ पे मेरा 0 होगा, 0 circular 0 radians. अगर मैंने पार्टिकल को एक्सट्रीम से शुरू किया तो इनिशियल फेज मेरा 2 पाई बाय 2 होगा रेडियंस. अगर पार्टिकल मैंने नेगेटिव एक्सट्रीम से ऑसिलेट करना शुरू तो व्हाट इज माय इनिशियल फेज स्टूडेंट्स 3 पाई बाय 2 रेडियंस. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अगर मैं पार्टिकल को ऑसिलेट करता हूँ स्टूडेंट्स तो मेरा इनिशियल फेज क्या होगा? 0. अगर मैं पॉजिटिव एक्सट्रीम से ऑसिलेट शुरू करता हूँ तो पाई बाय 2 मेरा इनिशियल फेज, और अगर नेगेटिव एक्सट्रीम से करता हूँ तो 3 पाई बाय 2. व्हाट इज द स्टैंडर्ड फार्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल स्टूडेंट्स? सबको पता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल x इज इक्वल टू प्लस और माइनस a sin omega t plus t, considering that the wave is moving along positive x-axis के बारे में बात कर रहे हैं. Plus or minus can be as the amplitude we can consider. Agreed? So that's how we consider. Now suppose अगर मैंने initial phase 0 ले लिया, students, can you tell me what is the displacement of the particle? तो x का फॉर्मूला क्या होगा? फिर x is equal to a sin omega. क्या ये क्लियर हुआ? Initial phase is 0. Any particle is starting from mean position, students. Now suppose अगर मैंने पूछा अगर initial phase 0 है students and the particle is starting from mean position we consider. So at mean position x is what? 0. अगर मैंने 0 डाल दिया तो what exactly I'm getting marks? Sin of omega t will be equal to 0, students. So what is the initial time instant is also 0. Yani at mean position students x is equal to 0, t is equal to 0, initial phase is also equal to 0. Now suppose अगर मैंने पूछा can you plot a graph? Students ध्यान से सुनना. Can you plot a graph of displacement of a particle as a function of time or theta? Because what is omega t? Theta. Can you plot a graph, students? तो अगर मैं थीटा लेता हूं तो मेरा ग्राफ बहुत इजी हो जाएगा स्टूडेंट्स. ये 0 डिग्री, ये पाई/2, ये पाई, ये 3 पाई/2, ये 2 पाई. अगर मैं टाइम भी लेता हूं तो भी मुझे एंगल ही मिलेगा स्टूडेंट्स. ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स. सपोज अगर मैं टाइम t इक्वल टू 0 लेता हूं, फिर टाइम t/4 लेता हूं. प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग. आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ अ वेव फॉर्म, क्योंकि एट टाइम्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में तुम्हें वेव फॉर्म या तो ड्रॉ करने बोलेंगे या सिलेक्ट करने बोलेंगे आप ऑप्शंस में, या तुम्हें वेव फॉर्म देंगे एंड देन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस. So you have to read the waveform very clearly, students. So we are trying to plot a graph of displacement as a function of time, or displacement as a function of theta we consider. Theta, which is measured in radians.
तो रेडियंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बहुत इजी हो जाता है। अगर मैं टाइम भी लेता तो इनडायरेक्टली स्टूडेंट्स मैं रेडियंस ही फाइंड आउट कर रहा हूँ। ये देखो ना, टाइम 0 है, टाइम t/4 है, टाइम t/2 होगा यहाँ पे, ये टाइम 3t/4 होगा, और ये टाइम कैपिटल T। अगर सपोज मैंने t डाल दिया स्टूडेंट्स, व्हाट इज साइन ओमेगा टी? लेट्स फाइंड साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी, उसका मतलब साइन क्या होगा सर? 2π/कैपिटल T into स्मॉल t। प्लीज पे अटेंशन, ये एक दफे में बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा दूसरे केसेस के लिए, फिर मैं डायरेक्टली मैं I'll try to put forward things. So please understand very carefully. तो अगर सपोज मैंने टाइम इंस्टेंट 0 डाल दिया तो स्टूडेंट 0 हो जाएगा साइन ऑफ 0, क्योंकि थीटा तुम्हें 0 मिल जाएगा यहाँ पे। अगर मैंने टाइम को t/4 डाला तो स्टूडेंट्स व्हाट एग्जैक्टली माय थीटा विल बी? सो थीटा विल बी 2π/कैपिटल T into t/4, कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा थीटा हो जाएगा π/2, यानी ये हो जाएगा साइन ऑफ π/2। सेकेंड पोजीशन के लिए है ना स्टूडेंट्स। थर्ड पोजीशन के लिए क्या है? अरे सर थर्ड पोजीशन के लिए टाइम t/2 है, तो वापस डालो, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी 2π/कैपिटल T। व्हाट इज टाइम इंस्टेंट? t/2, कैंसिल हुआ, थीटा इज पाई। तो कहना है से अगर मैं थीटा के हिसाब से जाता हूं तो मेरा आंसर किसके हिसाब से आना चाहिए? साइन ऑफ पाई। स्टूडेंट्स आर यू गेटिंग इट? यानी अगर मैं जीरो, अगर मैं सपोज टाइम में 0 लिखता हूँ स्टूडेंट्स, 0 seconds, what is corresponding angle theta? 0. If I take time as t/4, what is the corresponding angle? π/2. And indirectly I'm coming back to angle only, which is more faster and more easier. अगर सपोज मैंने टाइम को t/2 लिखा तो what is the corresponding phase of the particle? pi. अगर यहाँ पे अगर मैं टाइम t3 by what exactly corresponding phase will be equal to what? 3π/2 आएगा, and that is 2π. ये किसके लिए होगा? dt/4 and this is capital. क्या ये पार्ट क्लियर हुआ सबको स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, we are trying to plot the graph of displacement of a particle performing linear simple harmonic motion, considering its initial phase to be 0. So we are trying to plot it position versus time as a graph, or position of the particle with respect to theta measured in radians. In both the cases, my answer will be same. Students, क्या ये clear हुआ या नहीं हुआ? Is it clear? This is something ridiculous. If I'm asking also if there is no reply, then I have to just go on speaking without halting in between. At the end of it, क्या मालूम क्या पढ़ा है उसको ही पता. It will be like that. When somebody is asking you at particular instant, you should. And that is what it seems that you all are doing a mehrbani by coming into the lectures. No need. Please don't do it onto me. Do it onto your parents. Please, you can walk out right now. I have no problems. But unnecessary, this is not the way to do it. एटलीस्ट आई शुड नो इट करके अगर कहाँ पे कंफ्यूजन होगा तो क्लियर करो ना, अनम्यूट करो और पूछो, तो बता देता हूँ मैं। क्यों अपना टेंशन आगे कैरी फॉरवर्ड करते हो ना? इतना सुनने के बाद में कुंज इज पोस्टिंग इट, तो उसके पहले ही या तो वो क्लियर सर। एंड देन व्हेन इट कम्स टू प्रॉब्लम्स यू शुड बी एबल टू क्रैक इट। ये तो फिर भी इजी है। अगर फेस चेंज करता हूँ तो मेरा पार्टिकल का मोशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन सब चेंज होगा। यहाँ पे मेरा वेव फॉर्म किस तरफ जाएगा? दिस इज प्लस ए, दिस इज माइनस ए, and this is how my waveform will be. These are my coordinates, x comma y की value, and this is a sinusoidal wave. ये हुआ मेरा waveform. लेकिन ये किसका हुआ ग्राफ स्टूडेंट्स? ये हुआ displacement versus time का ग्राफ. It seems that you all know all these things, so now I'm going to plot the graph directly. Okay, no need to show it. Okay, ये तुम्हारा displacement versus time का ग्राफ.
So at times, if I make a particle to start from mean position, students, so my displacement time graph will be a sinusoidal wave, and from the sine function you can come to know about it. अगर suppose मैं इसी को differentiate करता तो students, you all know it. I just now asked him also. You have given the answer. A omega क्या था? Cos omega t. Agreed. And this answer will be meter per second. Now suppose अगर मैंने इसका अगर graph plot किया, horizontal x-axis, y-axis, origin, I can show it with time or theta, कुछ भी ले सकता हूँ मैं. तो अगर suppose मैं अभी time लिया 0, t/4, t/2, 3t/4, capital T, ये है प्लस ए, ये है प्लस ए, ये है माइनस ए. और तुम्हें पहला वाला मैंने अननेसेसरी बताया, सबको पता था अननेसेसरी वेस्टेड टाइम. तो ये वाला भी डायरेक्टली आई कैन पुट फॉरवर्ड सिंस इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम कंसीडर इन टर्म्स ऑफ इट. ये प्लस ए ओमेगा होगा क्योंकि ये मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है. तो ये प्लस ए ओमेगा होगा और ये माइनस ए ओमेगा होगा क्योंकि ये वेलोसिटी है. स्टूडेंट्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम. तो यहाँ पे ग्राफ क्या होगा सर? कॉस है, तो वहां एक्सिस से शुरू होगा, ऊपर से प्लस ए ओमेगा. तो तुम्हारा ये एक पॉइंट होगा, ये एक पॉइंट होगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा और ये होगा. ये हुआ तुम्हारा वेव फॉर्म. दिस इज हाउ द वेव फॉर्म इज. स्टूडेंट्स, प्लस ए ओमेगा माइनस ओमेगा स्पीक्स अबाउट मैक्सिमम वेलोसिटी. कैसे पता चलेगा? अगर सपोज मैंने यही इक्वेशन दिया, स्टूडेंट्स गेट टू द फॉर्मूला फॉर वी मैक्स. मुझे बताओ वी मैक्स कभी होगा? तो कोई भी बोलेगा सर वी मैक्स बिकॉज यू आर गुड इन ट्रिगो. बताने की जरूरत नहीं. वेलोसिटी मैक्सिमम कभी होगा? सर जब ये cos of this angle will be maximum. When exactly? So cos of 0 will be 1, and that is a omega. Agreed. See the, if I say omega, cos of omega t we consider. Omega t, students, omega t is equal to 0. So 2 pi by capital T into small t is equal to 0. What is the time instant? At time t equal to 0 seconds, did I get plus a omega? Yes. So maximum velocity का formula क्या है? I can get it a omega. Can I get it minus a omega also? Why not? यानी my answer for velocity can be maximum and it can be written in terms of plus or minus a omega. ये ध्यान में रखना. तो स्टूडेंट्स हमेशा जब भी मैक्सिमम वेलोसिटी के बारे में बात करोगे तो हमेशा मैक्सिमम वेलोसिटी स्टूडेंट्स ऑफ अ पार्टिकल इज ऑलवेज प्लस और माइनस ए ओमेगा. ध्यान में रखना. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स मैक्स, अगर तुम बात करोगे तो प्लस और माइनस ए होगा. मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करोगे तो प्लस और माइनस ए ओमेगा होगा. ना मैं इसको अगर डिफरेंशिएट कर दूं तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा. एक्सेलरेशन विल बी व्हाट? दिस विल बी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर sin omega t. Now again plot the graph of acceleration versus time. On y-axis you have acceleration, x-axis time लो या थीटा लो. दोनों केस में तुम्हें आंसर मिलेगा. सपोज अगर मैं थीटा वापस लेता हूँ 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π. Okay, maximum acceleration on either side. So this will be, when exactly acceleration is maximum? Students, acceleration maximum का formula क्या होगा? Acceleration maximum, students, will be when this angle is 90. Sine of 90 will be 1. So what exactly maximum acceleration I can consider would be negative a omega square. If it's along the positive x-axis, we consider negative a omega square along negative. यानी negative sign दिखाता क्या है? It's directed towards the mean or equilibrium position, students. यानी जब भी तुम maximum acceleration का बात करोगे तो यहाँ पे you can write as plus a omega square और यहाँ पे होगा minus a omega square. Now when I want to plot the graph of it, what exactly the graph is? It's a minus a omega square sine omega t. Is it a sine function? Yes, it's a sine function. It has to start from which position? That is from x-axis. But where exactly it's tending towards? Negative side. So what exactly my graphical representation will be? So my graphical representation will be in this manner. This will be the point, then this will be the point, then this will be the point, and coming back over here. ये होगा वेव फॉर्म.
ये किसका है? एक्सेलरेशन with respect to time or with respect to position. So maximum acceleration to formula, students, is always a omega square we consider. Now see, if I put sine of 0, what is sine of 0? 0. तो मेरा आंसर 0 होगा. What is sine of 90? +1. तो मेरा आंसर माइनस a omega square में आ गया. एंगल डालो ना, sine of pi 0, तो 0 आ गया. Sine of 3 pi by 2 -1, minus into minus plus, तभी जाके ये ऊपर आ गया. So see the waveform. ये एक साइनसोइडल वेवफॉर्म है, लेकिन नीचे की तरफ गया है. क्यों नीचे की तरफ गया है? क्योंकि माइनस ओमेगा. ये कौन सा वेवफॉर्म है? कोसाइन वेवफॉर्म है. कोसाइन वेवफॉर्म कहां से शुरू होता है? वाई एक्सिस. लेकिन ये ऊपर से क्यों शुरू हुआ? क्योंकि आगे प्लस ए ओमेगा लिखा. अगर स्टूडेंट्स ये मैंने माइनस ए ओमेगा लिखा होता और कॉस होता तो नीचे से शुरू होता. ये कौन सा है? साइन है. साइन का मतलब कहां से शुरू होगा? एक्स एक्सिस से होगा, लेकिन जा रहा है किस तरफ? प्लस है, तो ऊपर की तरफ चला गया. This is how a student should keep in mind. Students, are these graphical representation clear? A particle when set to oscillate from mean position, we have position time graph, velocity time graph, acceleration time graph. If I ask you what exactly the phase difference, students, what exactly the phase difference if I happen to consider between displacement and velocity? देखो ना, displacement velocity के बीच में phase difference क्या होगा? तो तुम क्या बोलोगे? सर ये मीन से शुरू होता है, ये पॉजिटिव एक्सिस से शुरू हो रहा है. सामने एक्सप्रेशन साइन और कॉस, फेज डिफरेंस कितना होगा? पाई बाई 2. ये एमसीक्यू है. The phase difference between displacement and velocity of a particle starting from mean position. Options pi, pi by 2, 3 pi by 2, 0, pi by 2. अगर मैं सपोज वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए पूछूंगा तो ये क्या है? सर ये वाई एक्सिस से शुरू हो रहा है, ये एक्स एक्सिस. इन दोनों के बीच में भी क्या होगा? फेज डिफरेंस इज pi by 2 itself only. But now if I have to ask between displacement and acceleration, तो ये पॉजिटिव तरफ जा रहा है और ये नेगेटिव तरफ जा रहा है. So what exactly we consider the phase difference? We consider is pi. One is positive extreme and one is negative extreme we consider. This is we consider this displacement versus time, velocity versus time, and acceleration versus time. Exactly identically, one can go for positive extreme, one can go for negative extreme also. Now, suppose if I happen to go for this, particle is oscillating from positive extreme towards my equation will be x is equal to a sine omega t. Since it started from positive extreme, so plus pi by 2, that's my initial phase. Now, अगर मैं graphical representation अगर मैं बताऊँ भी displacement, okay, position versus time graph अगर मैं बताऊँ भी, ये time या theta और ये तुम्हारा position भी consider x along y axis, this is origin. ये होगा maximum amplitude plus है और ये होगा minus है. या तो मैं टाइम के हिसाब से लिखूं या तो मैं फेज के हिसाब से लिखूं, एनीथिंग माय आंसर विल रिमेन द सेम. 0 t/4 t/2 3t/4 कैपिटल T. दोनों केस में मेरा आंसर सेम ही आएगा. लेकिन अगर मुझे इसको प्लॉट करना है तो कैन आई सिंप्लीफाई दिस? यस, व्हाई नॉट. ये जो हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो कभी भी इसको ये फॉर्म में मत लिखना है. थोड़ा सा तुम्हें अगर अनकंफर्ट लगता है इन टर्म्स ऑफ ट्रिगो, तो तुम इसको इजी फॉर्म में कर दो ना. साइन ऑफ a प्लस b. व्हाट इज साइन ऑफ a प्लस b? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. तो क्या होगा? पहला पार्ट 0 हो जाएगा, दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा? सर एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी. क्या ये क्लियर हुआ?
यानी यही इक्वेशन को एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया, x is equal to a cos omega t because cos of 90 was 0 and sin of 90 is 1. यानी तुम्हारा ये डिस्प्लेसमेंट का अभी तुम ये वाला इक्वेशन ले लो ना, इसी को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी क्या मिलेगा, अभी इसको डिफरेंशिएट करना, ये मत लो, तो तुम्हारा इजी बन जाएगा। ये क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन से, ये होगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा। उसी को अगर मुझे एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करना है तो क्या आंसर होगा सर, साइन का तो प्लस ही होगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। बस अगर मुझे यहाँ पे भी इसका ग्राफिकल चाहिए, यहाँ पे भी इसका ग्राफिकल चाहिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, तो प्लस ए ओमेगा मैक्सिमम वेलोसिटी माइनस ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी, ये होगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, ये होगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, जीरो। अगर सपोज मैं टाइम के हिसाब से जाऊं या फेस के हिसाब से जाऊं तो दोनों केस में मेरा आंसर वही होगा। यहाँ पे सपोज अगर मैं टाइम लेता हूँ t/4, t/2, 3t/4 कैपिटल T या π/2 पाई 3π/2 2π, माय आंसर विल रिमेन द सेम दोनों केस में। लेकिन मेरा ग्राफ क्या होगा, अगर पहले केस में अगर मैं ग्राफ देखो स्टूडेंट्स, तो x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t। cos का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, व्हाट एक्जेक्टली cos का मतलब, cos का मतलब है स्टार्टिंग फ्रॉम y एक्सिस, किस तरफ जा रहा है, प्लस a। यहाँ से शुरू होगा स्टूडेंट्स, से पहला पॉइंट ये होगा, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आएगा, तीसरा पॉइंट इधर होगा, चौथा यहाँ पे होगा, पांचवा यहाँ पे होगा। सो दिस इज ऑल्सो वेव फॉर्म इज गोइंग टू बी, देखो cos का और प्लस a से शुरू हो रहा है। वही चीज अगर मुझे यहाँ पे बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा, साइन है यानी एक्स एक्सिस से शुरू होगा, लेकिन किस तरफ जा रहा है, नेगेटिव, यानी यहां से इस तरफ जाएगा। ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट। दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी द वेव फॉर्म। अगर सपोज मुझे इसको सॉल्व भी करना है स्टूडेंट्स, चलो माइनस ए ओमेगा, स्टूडेंट्स ये क्या है 3t/4, इस टाइम पे इसका फेस कितना होगा, व्हाट इज द फेस, 3π/2, डाल दो साइन ऑफ 3π/2 स्टूडेंट्स। ये देखो ना 3t/4 के लिए फेस कितना है 3π/2, नीचे मेरे फेस में दिखा है, व्हाट इज साइन ऑफ 3π/2 सर, इसका आंसर तो -1 आता है। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, आया तुम्हारा प्लस ए ओमेगा। सो इधर यू टेक इट इन दिस वे, ये तुम्हारा वेव फॉर्म हो गया। तीसरे के लिए क्या है, एक्सेलरेशन, कॉस में आ रहा है स्टूडेंट्स, कॉस में यानी कहां से शुरू होगा, वाई एक्सिस से शुरू होगा, लेकिन वाई एक्सिस क्या यहाँ से शुरू होगा, नीचे से। सर ये माइनस के ओमेगा स्क्वायर बता रहा है नीचे से, वो देखो मैंने एक्सेलरेशन को स्मॉल ही लिखा है, डजंट मैटर, सॉरी ये एम्पलीट्यूड को स्मॉल ही लिखा है, यू कैन राइट कैपिटल ए, डजंट मैटर, एम्पलीट्यूड एज कैपिटल है, एक्सेलरेशन स्मॉल है, नीचे से शुरू हो रहा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से शुरू होगा कॉस है, तो पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे और पांचवा यहाँ पे। नाउ जॉइन दिस पर्टिकुलर, इट्स अ वेव फॉर्म, shortened form of waveform. So students, these are your expressions for displacement time, velocity time, acceleration time graph for a particle starting from positive extreme. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ मैंने साइन ऑफ a प्लस b यहाँ पे यूज किया, तो मुझे इजी इक्वेशन मिला, और वो इजी इक्वेशन को तुम स्टार्टेड सॉल्विंग। So for this one,
I'll just give the equation because now you are too good enough to draw the graph by yourself. Discuss the equation there. That's more than enough. And students, whenever you solve problems, you should be able to crack it. The particle कहाँ से शुरू होता है ये ध्यान रखना. अगर मैंने 3π/2 दे दिया students, so what exactly my equation will be? X is equal to a sin omega t plus 3π/2. वापस अगर मैं sin of a plus भी लेता तो sin a cos b plus cos a sin b, तो ये क्या होगा? minus a cos omega. ठीक है स्टूडेंट्स, cos of omega t sin of 3π/2 is -1. ये माइनस में होगा. यानी हमेशा ये ध्यान में रखना, अगर तुमने नेगेटिव एक्सट्रीम से शुरू किया है तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का ये आंसर आएगा. पॉजिटिव एक्सट्रीम से शुरू करोगे तो a cos omega t आता है. ये ध्यान रखना. दिस इज हाउ यू कैन कंसीडर. अभी इसी को मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो वेलोसिटी क्या बन जाएगा मेरा आंसर? तो cos is माइनस साइन, तो माइनस से माइनस होगी प्लस a ओमेगा sin ओमेगा t हो जाएगा. बिकॉज़ डिफरेंशिएटिंग cos में जो माइनस साइन. अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या होगा? सो डिफरेंशिएटिंग साइन विल बी अगेन cos plus cos, so a omega square cos omega t. This answer will be in meter again. This is in meter. This is in meter per second square. You can plot the graph. अगर तुम डायरेक्टली देखोगे तो ये क्या होगा ग्राफ? सर ये वाला ग्राफ आपका cos होगा, नेगेटिव से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू होगा पहले के लिए. दूसरे के लिए कहाँ पे होगा? सर साइन और प्लस ओमेगा जा रहा है तो यहाँ से शुरू होगा. ये क्या है? सर cos है और नीचे से शुरू हो रहा है तो ये सर ऊपर से शुरू हो रहा है तो कैन यू फाइंड आउट द फेज डिफरेंस? यस. अगर मैं पहला और इसका देखूं तो ये यहाँ पे ऊपर से दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या है? पाई. एंड दे कैन आस्क यू स्टूडेंट्स फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर अ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम, तो यू शुड नो इट. और तुम अगर देखोगे तो देयर इज अ फेज डिफरेंस. ये देखो cos और sin हुआ तो π/2, sin और cos हुआ तो π/2, बिटवीन टू cos फंक्शंस पाई. Okay students, the formula for maximum velocity will be equal to plus or minus a omega. Positive sign shows that the particle is moving from mean. Positive sign shows the particle is moving from mean towards positive extreme. Negative sign shows that the particle has maximum velocity at mean position. You should take care of these things, students. It will help you out to solve multiple choice questions more easily. Negative sign means that the particle is at mean, its velocity is maximum, but tending to move towards negative extreme. So negative sign का मतलब क्या हुआ? Minus sign का मतलब it has maximum velocity mean, but it's tending to move towards negative extreme. Positive sign that means velocity is maximum, tending to move towards positive extreme. Do keep in mind. Velocity plus or minus a omega ये होगा. Velocity at extreme position सबको पता है, zero है, यहाँ पर भी zero है. अगर मैंने पूछा what is the velocity at any intermediate position? Intermediate position इनके लिए क्या use करोगे? इनके लिए we can use velocity as a function of theta या function of time. Place function के हिसाब से तुम use कर सकते हो velocity as a function of theta या function of time. या you can also use v is equal to plus or minus omega under root e square minus x square. ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो. ये किसके लिए? इंटरमीडिएट पोजीशन स्टूडेंट्स. यानी स्टूडेंट्स के लिए ध्यान होना चाहिए कि जब भी पार्टिकल कोई भी इंटरमीडिएट पोजीशन में होगा, मीन और नेगेटिव एक्सट्रीम के बीच में, मीन या पॉजिटिव एक्सट्रीम के बीच में, तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? या तो तुम ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म की हेल्प लो, डिपेंडिंग ऑन टू क्या प्रॉब्लम दिया हुआ है.
इज दैट प्रॉब्लम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या फंक्शन ऑफ थीटा दिया है, एंगल के हिसाब से दिया, या तुम्हारा वेलोसिटी दिया है फंक्शन ऑफ प्लेस। तो उसको देखते हुए यू हैव टू टेक द डिसीजन एट दैट टाइम बाय रीडिंग द एमसीक्यू वेरी वेरी क्लियर। मीन पे क्या होगी, हमेशा वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, प्लस और माइनस ये दिखा रहा है तो मैक्सिमम है टेंडिंग टू मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव, टेंडिंग टुवर्ड्स नेगेटिव, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो है। ये हुआ तुम्हारा वेलोसिटी का कांसेप्ट। डिस्प्लेसमेंट को सबको मालूम है, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से मेजर करते हैं, फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर मैंने बोला स्टूडेंट्स, ये मैं प्रॉब्लम्स के हिसाब से बता रहा हूं स्टूडेंट्स, अगर मैंने बोला पाथ लेंथ इज 16 सेंटीमीटर, तो एम्पलीट्यूड कितना हुआ, 8 सेंटीमीटर। अगर मैंने बोला पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन, तो फॉर्मूला क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, a cos ओमेगा t। और फिर मैंने बोला the particle is at start from extreme position and has a displacement of 2 centimeter from extreme। तो मेरा x क्या होगा, 2 नहीं होगा, 8 minus 2 6 सेंटीमीटर। ये ध्यान में रखना। This is what it means. Displacement is always measured from where, mean position. So what, particle starts from extremes or anywhere in intermediate position। तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहां से मेजर होना चाहिए, मीन पोजीशन से। ये तुम्हारा 6 सेंटीमीटर होगा, ये तुम्हारा 2 सेंटीमीटर होगा, और ये 8 सेंटीमीटर। द एम्पलीट्यूड इज 8 सेंटीमीटर। This is what a student should keep in mind if a particle starts from positive extreme। एक्सेलरेशन को देखोगे तो एक्सेलरेशन इज 0 at mean position, acceleration is maximum at extreme position, and what is the formula for maximum acceleration, plus or minus omega square into a। ये वो maximum acceleration। x को क्या लिखो, what अगर सपोज मैंने इंटरमीडिएट पोजीशन पूछा, समझ, इंटरमीडिएट एनीवेयर इन बिटवीन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर इनटू x। लेकिन एक्सट्रीम पे चला जाएगा तो x को a डाल दो। तो ये हुआ तुम्हारा फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन। जहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, फोर्स वहां पे मैक्सिमम होगा, व्हिच आई टोल्ड यू। दिस वाज सिंपली फॉर वेलोसिटी आई टोल्ड। जहां पे तुम्हारी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी स्टूडेंट, वहां पे क्या होगा, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम। एट एक्सट्रीम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी विल बी 0। At mean position students, kinetic energy will be maximum, at extreme position kinetic energy will be 0। जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा स्टूडेंट्स, वहां पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0। यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम। ये ध्यान में रखना, यानी जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा वहां पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा, जहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 है वहां पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा। The total mechanical energy, students, total mechanical energy throughout the journey, students, of a particle performing linear SHM, students, total mechanical energy all the time remains constant, और इसका फॉर्मूला है half m omega square e square, which remains constant। ये मैकेनिक्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, ये मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात होगी। स्टूडेंट्स, अगर तुम लोग काइनेमैटिक्स पढ़ोगे तो वहां पे फॉर बॉडी फॉलिंग वर्टिकल डाउनवर्ड्स और मूविंग, फॉर अ फ्री फॉलिंग बॉडी टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट, mgh आता है एट ईच पॉइंट। पढ़ा हुआ तुम लोगों ने, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑल द टाइम्स रिमेंस कांस्टेंट। फिर तुरंत तुम अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जाते हो तो वहां पे भी पढ़ा है, सर्कुलर मोशन में वर्टिकल, ओके, नॉन यूसीएम का, तो नीचे वेलोसिटी √5 g, diametrically opposite points √3 g, topmost position √g। यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो भी कांस्टेंट है, क्या है फॉर्मूला, 5/2 mgr। देखो ना, टोटल मैकेनिकल एनर्जी थ्रू आउट द वर्टिकल मोशन कांस्टेंट है, फ्री फॉलिंग कांस्टेंट है, तो यहाँ पे भी ये मैकेनिकल के बारे में बात कर रहा है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेंस कांस्टेंट, और फॉर्मूला क्या है, हाफ m omega square a square। m is the mass of oscillating particle, omega is the angular frequency, a is the amplitude। यानी जहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा स्टूडेंट्स, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा,
और जहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा वहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, लेकिन टोटल हमेशा कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट। यानी पार्टिकल अगर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे एनीवेयर throughout the motion, total mechanical energy remains constant. About time, I made it very clear in the last lecture. अगर suppose मैंने half the amplitude ले लिया है, तो how much is the time taken to move from here till here? तो तुम्हारा आंसर होगा T/12. Mean midway to extreme कितना होगा? T/6. दोनों को ऐड करेगा तो T/4 होगा. So the next lecture will be continuing further ahead with how to get the derivation of total mechanical energy. Okay, kinetic energy, elastic potential energy, total mechanical energy. We'll be doing with that part of it, and then composition of two SHM will go for it. Okay, but next time we'll be solving problems based on to what I have informed it. Okay, we'll wind up the sessions. Okay.